નમસ્કાર મિત્રો, વન ટચ એજ્યુકેશન ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે જોઈશું ફિલો ટ્યુટર એપ્લિકેશન ભારતની સૌથી સારી એપ્લિકેશન કે જેમાં દરરોજના 4 રૂપિયા ખર્ચ કરીને મહિને 20,000 રૂપિયા કમાઈ શકો છો। ફિલો એપ્લિકેશનમાં તમે દર કલાકે ધોરણ 8 થી 12 ના 10 થી વધુ વિદ્યાર્થીઓને જોઈન કરીને ભણાવી શકો છો। આ ઉપરાંત ફિલો એપ્લિકેશન ઘણી બધી સુવિધાઓ આપે છે। વિદ્યાર્થીઓને ગમે ત્યારે ગમે ત્યાંથી શીખવી શકો છો। તમે તમારા ફેવરિટ વિષયોને ભણાવી શકો છો। માત્ર 2 જ વિષય તમને આવડતા હોય તો પણ તમે ફિલોમાં જોઈન થઈ શકો છો। તમે વિદ્યાર્થીઓના ડાઉટ્સ, કન્સેપ્ટ, પરીક્ષાની તૈયારી અને હોમવર્કમાં મદદ કરી શકો છો। ઇન્ડિયાના વિદ્યાર્થીઓ સાથે મેળવવાનું સૌથી મોટું પ્લેટફોર્મ એટલે ફિલો પ્લેટફોર્મ। આ એપ્લિકેશનમાં જોઈન થવા માટે પ્લે સ્ટોર ઉપરથી તમારે ફિલો ટ્યુટર એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની છે। ત્યાર પછી તમારે તેમાં મોબાઈલ નંબર નાખવાનો આવશે। મોબાઈલ નંબર નાખશો એટલે ઓટીપી આવશે। ઓટીપી નાખી દીધા બાદ તમારા પ્રોફાઇલની અંદર તમારું નામ અને તમારો ફોટો નાખીને લોગિન કરવાનું આવશે। ત્યાર પછી તમારો જો પાન કાર્ડ છે તે તમારે સિલેક્ટ કરવાનું છે। તમે કયા સબ્જેક્ટની અંદર, કયા માધ્યમની અંદર, કયા ધોરણમાં તમે ભણાવો છો તે તમારે સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે અને તમારે લોગિન કરી દેવાનું રહેશે। અને ત્યાર પછી તમે ફિલો એપ્લિકેશનની અંદર દરરોજના 4 રૂપિયા ખર્ચ કરીને તમે મિત્રો મહિને 20,000 રૂપિયા પણ કમાઈ શકો છો અને ઇન્ડિયાના મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓ સુધી તમે કનેક્ટ થઈ શકો છો। તો મિત્રો લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, તો અત્યારે ડાઉનલોડ કરો ફિલો એપ્લિકેશન। ધોરણ 9 પ્રથમ પરીક્ષાનું પ્રશ્નપત્ર કે જે નમૂનાનું પ્રશ્નપત્ર તમને અહીં આપેલું છે, જે પ્રથમ પરીક્ષા માટે એક આદર્શ પ્રશ્નપત્ર છે। તમને ખબર હશે કે આના માર્ક્સ હોય છે 50 માર્ક્સનું પેપર હોય છે અને જેનો સમય 2 કલાક હોય છે। कितने 2 घंटे होता है टाइम। तो चलो આગળ જોઈએ આપણે। તો કે પહેલાં પૂછાય છે આપણે વિભાગ એ। શું પૂછાય છે? વિભાગ એ। તો કે વિભાગ એની અંદર તમને પહેલાં તો 2 ખાલી જગ્યાઓ આપેલી હશે। શું 2 ખાલી જગ્યાઓ? કે रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। તમને અહીં 2 ऑप्शन આપેલા હશે। तो પહેલો આપણી ખાલી જગ્યા છે ब्राह्मण देवता मैं आपको खाली जगह का अवसर देना चाहता हूँ। तो એમાં જવાબ આવશે न्याय, न्याय का अवसर देना चाहता। दूसरा है प्रियव्रत राय खाली जगह में पढ़ता है। तो आनो जवाब आवश्य मैट्रिक, मैट्रिक में पढ़ता है। प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। एना पछी આપણે બીજા 2 પ્રશ્નો આપેલા છે, 2 ખાલી જગ્યાઓ છે, એની અંદર 4 ऑप्शन આપેલા છે कि सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। उसके भी 2 मार्क्स हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा कि न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को घोषित करते हुए सम्राट अशोक ने राज मुद्रा दी। इसका अर्थ है क्या है? न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को घोषित करते हुए सम्राट अशोक ने राज मुद्रा दी। इसका अर्थ है कि यह तुम्हारे न्याय मंत्री होने की पहचान है। आ जवाब आपसे शू कि यह तुम्हारे न्याय मंत्री होने की पहचान है। चलो चौथा देखते हैं। रानी का मन कहता था, रानी का मन कहता था कि खाली जगह, क्या कहता था? कि वह उनके जीवन का अंतिम युद्ध था। क्या इसमें जवाब रहेगा ए, कि वह उनके जीवन का अंतिम युद्ध था। उसके बाद देखते हैं हमारा कि एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें 2 है देश का वातावरण आज कैसा हो गया है, कैसा बन गया है। तो आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या है कि आज देश में कोई ईमानदार इंसान नहीं दिख रहा है। फिर छठा प्रश्न है कि बच्चन जी ने मुक्ता प्रसाद जी को कौन सा उपचार बताया था। चलो एना पछी है अपना कि 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। कि मित्रों एना पछी पूछा है अपने 4 मार्क्सना 2 प्रश्नों 2 अथवा वाक्यों में अपने जवाब आपवानो रहेशे। आ खूब ज मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। जेम कि प्रियोदा की टोली का रविवार को क्या कार्यक्रम होता था। 8वां प्रश्न है कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की है। एना पछी है अपने जोईए नेक्स्ट के 4 मार्क्स में अपने प्रश्न आपेला है 2 અને બંને અથવામાં હશે। ખાસ યાદ રાખવું 5 થી 6 વાક્યોમાં જવાબ આપવાનો છે। એક છે આપણો મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी, इसको स्पष्ट कीजिए। એના અથવામાં છે શું કે લેખક બીમારી में भी क्यों काम करते थे। આના જવાબ આપણે આપવાના રહેશે 5 થી 6 વાક્યોમાં અને તેના માર્ક્સ હશે 4। તો ચલો તેના પછી આપણે નેક્સ્ટ જોઈશું। તો નેક્સ્ટમાં આપણને શું આપેલું છે જોઈએ તો કે આગળ આપણને વિભાગ બી આપેલો છે અને વિભાગ બીની અંદર આપણને એક ખાલી જગ્યા 2 આપેલી છે। ખાલી જગ્યાઓ કઈ છે તો કે વિભાગ બીની અંદર પેલો પદ્ય વિભાગ છે। શું છે? પદ્ય વિભાગ એટલે કે તમારી કવિતાઓમાંથી પ્રશ્ન હશે કે દુર્બલો કે ખાલી જગ્યા પૌરુષ की साधना। તો એની અંદર શું આવશે? नवतेज पौरुष की साधना। ત્યાર પછી છે खाली जगह की चाह नहीं अपनी कोई पहचान नहीं। यानी अंदर से वैभव विलास की चाह नहीं अपनी कोई पहचान नहीं। तेना पछी तमने एक
કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ કીજીએ અને કાવ્ય પંક્તિના માર્ક્સ હશે 2 કે वे आर्य ही खाली जग्या कभी पीते નથી। મોસ્ટ આઈએમપી છે મિત્રો, ખાસ આપ કવિતા તૈયાર કરી દેવી જેથી તમને પૂરા માર્ક્સ મળી શકે। ચલો તેના પછી છે આપણે કે એક એક વાક્યમાં ઉત્તર લખીએ, એક એક વાક્યમાં જવાબ લખવાના હશે અને એના માર્ક્સ હશે 2, કારણ કે એક પ્રશ્નનો 1 मार्क्स હશે। જેમ કે आईएमपी प्रश्न सुर धन्य क्यों हुए और इसके बाद है कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं। इस 2 प्रश्न का हमें कितने मार्क्स मिलेंगे तो कि 2 मार्क्स मिलेंगे। एना पछी आपणे जोईए तो कि 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए, 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए, इसके मार्क्स है 4। पहला है हमारा 15वां क्वेश्चन कि विभव से क्या प्राप्त होता है, और 16वां है सूरदास छेरी मतलब बकरी दूहने की ज़रूरत क्यों नहीं समझते। ये दोनों बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत अच्छी तरह तैयार कर देना। उसके बाद है 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए, उसके मार्क्स से 4। 70वां है और अथवा में और दूसरा भी प्रश्न हमें दिया हुआ है, वो कहाँ से होगा तो आपके पद्य विभाग से। गुप्त जी ने भारत के गौरव का वर्णन किस तरह किया है, और उसके अथवा में है सूरदास अपने आप को क्यों धन्य मानते हैं। आप सब जानते ही होंगे कि ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट आईएमपी है और आपकी प्रथम परीक्षा में पूछाने वाले हैं। उसके बाद है विभाक्षी, जो होगा व्याकरण, ग्रामर होगा आपका, आपके टेक्स्ट बुक से ही होगा, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें है पहला कि निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, उसका मार्क है 1। यदि सिर्फ आप अर्थ देते हैं तो आधा मार्क्स मिलेगा, और उसके बाद वाक्य भी बनाते हैं, वाक्य प्रयोग करते हैं तो उसका आधा मिलेगा, दोनों होकर आपको 1 मार्क्स मिलेगा। कितना मार्क मिलेगा? 1 मार्क मिलेगा। पहला है हमारा 18वां प्रश्न कि रात दिन एक करना, मतलब उसका क्या होता है तो कि कड़ी मेहनत करना। क्या होता है? कड़ी मेहनत करना। मित्रों खास याद रखना, मेहनत हमारी गुजराती में नहीं लिखना है, मेहनत क्या करना है? मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना, उसका मतलब होता है दिन रात एक करना, या तो रात दिन एक करना। उसके बाद है कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए, कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए, मतलब नाच न जाने आंगन टेढ़ा, उसका मार्क 1 है। तो कहावत कौन सी दी है हमें कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो इसमें आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सोचिए कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जो नाचना जानता है, नाचना नहीं जानता और उसको आप बोलेंगे कि चलो थोड़ा नाचो, तो वो कहेगा क्या कहेगा कि आंगन टेढ़ा है। क्या कहेगा? आंगन टेढ़ा है। उसका मतलब होता है कि जिसको काम नहीं करना होता है वो बहाने ढूंढता फिरता है। सोच लिया, समझ लिया क्या कि जो नाचना मतलब जो काम करना नहीं चाहता है वो बहाने ढूंढता फिरता है। ओके, आप समझ गए होंगे। उसके बाद हमारा 20वां क्वेश्चन है, उसको करना है वाक्य शुद्ध कीजिए। क्या करना है? वाक्य शुद्ध कीजिए। तो हमें एक वाक्य दिया हुआ है कि तुम्हारी स्कूल कहाँ है, तो यहाँ हमें क्या गलत है कि तुम्हारी, तो तुम्हारी की जगह हमें लिखना है तुम्हारा। क्या लिखना है? तुम्हारा स्कूल कहाँ है, ऐसा हम लिखेंगे तो हमारा आंसर सही होगा। क्या? तुम्हारी की जगह तुम्हारा स्कूल कहाँ है, ऐसी तरह आपको लिखना है, उसका मार्क 1 होगा। उसके बाद हमें दिया है क्या कि विरोधी शब्द लिखिए। क्या? विरोधी शब्द लिखिए, उसका मार्क 1 है कि ईमानदार, तो ईमानदार का विरोधी होता है क्या कि बेईमानी। क्या होता है? बेईमानी, बेईमानी, दीर्घ नहीं होगा, बड़ा नहीं, बेईमानी, ईमानदार का विरोधी होता है बेईमानी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 22वां है कि पर्यायवाची शब्द लिखिए। क्या लिखिए? पर्यायवाची शब्द, मतलब आप समझते होंगे कि गुजराती में हम बोलते हैं उसे समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी मतलब कि उसका दूसरा अर्थ, तो अतिथि, अतिथि क्या होता है? मेहमान। क्या होता है? मेहमान। याद रखना है मेहमान नहीं लिखना है, हिंदी में हम लिखेंगे मेहमान। क्या लिखेंगे? मेहमान। चलो उसके बाद 23वां प्रश्न है कि आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द। यहाँ हमें दिया हुआ है एक शब्द समूह और उसके लिए एक शब्द क्या होता है वो हमें लिखना है, उसका मार्क है 1। धर्म से डरने वाला, तो आपको पता होगा कि धर्म से डरने वाला उसका जवाब होता है धर्मभीरु। क्या होता है? धर्मभीरु। चलो ये आपका आंसर होगा, उसका उत्तर है धर्मभीरु। उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं कि उपसर्ग दीजिए। क्या है? उपसर्ग दीजिए।
ये आपको शब्द दिया हुआ है पराजय, तो देखो आप पर वत्ता अजय, क्या पर प्लस अजय, तो उसमें अजय हमारा वर्ड है और उपसर्ग क्या होगा, तो कि पर, क्या होगा पर, उसमें जवाब आएगा पर, यह हमारा उपसर्ग है। गुजराती में बोलते हैं पूर्व प्रत्यय और पर प्रत्यय, और ये है पूर्व प्रत्यय, क्या है पूर्व प्रत्यय। चलो उसके बाद हम फ्रेंड्स देखते हैं 25वां क्वेश्चन। कौन सा 25वां क्वेश्चन, तो 25वें क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि भाववाचक संज्ञा बताई है जिसमें भाव दिखाई दे उस शब्द को आपको ढूंढना है, और हमारा प्रश्न है रमेश में मानवता है, तो उसमें भाववाचक संज्ञा होगी मानवता। क्या इसमें जो मानवता लिखा है वो है हमारी भाववाचक संज्ञा, क्या है भाववाचक संज्ञा। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि कर्तृवाचक संज्ञा बताइए, मतलब उसमें कर्ता कौन है, काम करने वाला इंसान कौन है वो हमें देखना है, कर्तृ। तो धोनी क्रिकेट का खिलाड़ी है, तो कौन कि धोनी, तो धोनी वो क्या है कर्तृवाचक संज्ञा, तो हमारा जवाब होगा धोनी। उसके बाद हम देखते हैं कि निम्नलिखित विशेषण बताइए, निम्नलिखित विशेषण बताइए। आप जब भी प्रश्न पूछेंगे उसमें कैसे, किससे पूछेंगे कैसे, कैसे से आप यदि पूछते हैं प्रश्न तो आपको मिलता है आपका विशेषण, क्या मिलता है विशेषण। तो उसमें लिखा है कि गांधी जी सब में पूजनीय थे, तो गांधी जी कैसे थे, तो आपका जवाब मिलेगा पूजनीय, क्या मिलेगा पूजनीय। आप कहेंगे कि मैं हमारे घर में सबसे बड़ा हूँ, तो आप कैसे हैं कि बड़े हैं, कैसे हैं बड़े हैं, तो बड़ा है वो आपका क्या है, तो विशेषण है, क्या है विशेषण है। देखिए फ्रेंड्स हमारा व्याकरण विभाग पूरा भी हो गया, आपको समझ में भी आ गया। उसके बाद है विभाग डी, उसमें हमें लेखन करना है, क्या करना है लेखन। तो उसमें पहले हमें एक परिच्छेद दिया हुआ है, क्या है परिच्छेद, और इस परिच्छेद के बाद आपको दिए हैं 4 प्रश्न दिए हैं, क्या दिए हैं 4 प्रश्न हैं, और उसके उत्तर 3 प्रश्न ही हैं सॉरी। तो उस 3 प्रश्न के जवाब आपको उत्तर कहाँ से देने हैं, इस पैराग्राफ से, मतलब इस परिच्छेद से आपको देने हैं। चरित्र का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मानव के व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले विभिन्न तत्वों में चरित्र का सबसे अधिक महत्व है। इस पर से आप आपके जवाब लिख सकते हैं। चरित्र किसे कहते हैं वो भी इसमें दिया हुआ है। इस गद्यखंड का उचित शीर्षक कहाँ क्या है, तो अभी आप इसमें से चारित्र्य या चरित्र जो भी आपको सही लगे वो लिख सकते हैं। और उसके बाद आपको दिखाई देगी एक कहानी, कहानी घर घर की और कहानी लकर बकर की, वो कहानी नहीं है फ्रेंड्स, ये है एक ज़मींदार की कहानी। क्या है ज़मींदार की कहानी। पहले तो आप जब भी लिखेंगे उसके पहले आपको एक शीर्षक लिखना है, क्या लिखना है शीर्षक लिखना है कि ये कौन से विषय पर बनी है, कौन से विषय पर बनी है ये कहानी, वो आपको समझना है। तो पहले आप ये जो मुद्दे दिए हुए हैं कि एक ज़मींदार, बहुत से नौकर, खेती की आमदनी का दिन, घर दिन कटते जाना, मित्र की सलाह, सुबह खेत की सैर करो, कुछ नौकर गायब, कुछ चीज़ें गायब, रोज़ देखभाल, आंखें खुलना, खुद काम में लग जाना, सभी नौकरों में उत्साह, आमदनी बढ़ना सीख। तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि यहाँ पर एक ज़मींदार की हमें कहानी लिखी हुई है कि एक ज़मींदार था, उसके पास बहुत से नौकर थे। जब खेत में सब पाक ले लिया उसके बाद आमदनी का दिन आया, तो आमदनी उसने देखी तो कुछ आमदनी खास हुई नहीं थी। एक मित्र ने उसे सलाह दी कि तुम सुबह उठो और खेत की सैर करो, मतलब खेत में घूमने जाओ। खेत में घूमने वो जाएगा तो उसको पता चलेगा कि कौन सा उसका जो नौकर है वो अच्छी तरह काम करता है। तो ऐसे घूमते घूमते उसने रोज़ देखभाल करना शुरू कर दिया और उसके जो नौकर थे वो अच्छी तरह काम करने लगे, क्योंकि वो जब घर बैठता था तो उसके नौकर अच्छी तरह काम नहीं करते थे, और वो जब जाने लगा तो अच्छी तरह काम करने लगे। तो उसका मतलब ये होता है कि जब वो अच्छी तरह काम करने लगे तो उसको आमदनी भी अच्छी हुई और आमदनी भी अच्छी बढ़ गई। तो नौकर गायब क्यों हुए थे कि वो अच्छी तरह काम नहीं करते थे। जिस दिन वो सैर करने पहली बार गया तो सब नौकर भाग गए, तो कुछ चीज़ें भी गायब हो गई और अच्छी तरह काम होने लगा। तो इसके ऊपर से आप अपनी तरह एक शीर्षक भी डाल सकते हैं। उसके बाद यदि आपको ये कहानी न आती नहीं है तो फिर आप उसके अथवा में क्या लिख सकते हैं, तो एक पत्र लिख सकते हैं। देखो कि सोना टाउनशिप, मांडल रोड, विरमगाम से वंश पटेल राजकोट में रहने वाले अनिल वर्मा को पर्यावरण का महत्व समझाते हुए पत्र लिखता है।
तो ये है हमारा पत्र। यदि आपको कहानी के अथवा में पत्र लिखना है और पत्र आपको नहीं आता है तो आप वन टच एजुकेशन चैनल में एक कमेंट कर सकते हैं प्यारी सी, तो हम आपको पत्र लिखना भी सिखा देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं कि क्या आता है। तो उसके बाद है हमारा निम्नलिखित विषय पर लगभग 100 शब्दों में निबंध लिखिए। क्या लिखना है हमें? निबंध। और निबंध के मार्क पुलनामा 6 मार्क्स हैं। कितने? 6 मार्क्स। और सिर्फ 100 शब्दों में लिखना है। तो उसमें आपका मोस्ट टाइम भी होगा मेरा प्रिय त्यौहार। यदि आपको ये नहीं आता है तो आप लिख सकते हैं मेरा भारत महान। यदि यह भी नहीं आता है तो आप लिख सकते हैं विद्यार्थी की आत्मकथा। क्या लिख सकते हैं? विद्यार्थी की आत्मकथा। आप आत्मकथा तो जानते ही होंगे कि जो अपने पर जो बीती है, क्या अपने पर जो बीती है, अपने जीवन में जो भी घटनाएं हुई हैं उसके बारे में लिखना होता है। तो खास याद रखना है कि जो आपको ये निबंध दिया हुआ है उसके आपको मुद्दे भी दिए हैं और उसके ऊपर से ही आपको निबंध लिखना है। सिर्फ एक निबंध लिखना है और 6 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि फ्रेंड्स अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उसके पास में एक बेल आइकन भी दिया हुआ है, वो बजाने को भूलना मत। उसको हिंदी में घंटा बोलते हैं। तो ठीक है, चलो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। गुड बाय, थैंक